नमस्कार। फिट फॉर लाइफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक युग में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी इनकी गिरफ्त में आ जाता है। मॉडर्नाइजेशन के चलते इंसान ने अपने लिए तरह तरह की सुख सुविधाएं तो इकट्ठी कर ली हैं, पर इसका नतीजा ये कि हमारा स्वास्थ्य लगातार गिरता रहता है। आप और हम इस भाग दौड़ से भरी जिंदगी में तरह तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से जूझते हैं। हेक्टिक लाइफ के चलते हमारा खान पान भी बिगड़ जाता है। अब स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें ज़रूरत है एक्सरसाइज की, लेकिन एक्सरसाइज कभी भी अपने आप या सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दे के नहीं करनी चाहिए। उसके लिए एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो सही क्या है, ये हम आपको बताएंगे फिट फॉर लाइफ के इस एपिसोड में। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो फिट फॉर लाइफ से जुड़कर आप अपनी जान को बनाइए सुस्वस्थ और जहान को बनाइए सुंदर और खुशहाल। सच दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि हम आपको एक सही फिटनेस दें और साथ ही आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए सदा इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आज हम बात करेंगे कमर और कमर के दर्द के बारे में। आप किस तरह अपनी कमर को सुडौल बना सकते हैं और किस तरह कमर के दर्द से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इसी के बारे में आज आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। Today we have for you a very interesting aerobic combination, but it is slightly lengthy than what we do usually. So let's not waste time in talking. Let's begin by marching. I'm Manisha, Denise Gagan, Karishma here. We're marching on our right leg. 5, 6, step touch, right leg, take a deep breath. Warming up and down. Up. Nice weather. Let's go. Up, 2, 3, 4 and down. And up. And down, keep going for more. Take a deep breath, breathing through your nose. And 5, 6, take a double step touch right here. Let's go double. Actually, I'm sliding. Then down, and down, and down, and down. 5, 6, ham curls on the spot, that's ham. We're warming up, so we're not jumping, just taking it low. वार्म अप। एरोबिक्स शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार किया जाए, और इसका सबसे बढ़िया उपाय है वार्म अप। And hum. 5, 6, mambo, right leg, let's go. Mambo with a twist. And mambo. Keep going. Huh? Looking all pretty. Way to go. And march it here, 1, 2, 3, tap, 1, 2, 3 and tap, and 3 and tap. Keep going. That's 1, 2, 3 and tap, back, 2, 3. Can we take it forward and back? 5, 6, 7, go. Forward and back, double clap. 1 and double, 1, double. We're gonna pick our step touch, left leg now. That's left. Be careful of your mat. About to trip. Hands pushing forward and back, forward and back. And 5 and 6. Slide it down, left side, slide. And slide. Down. Smiling. Slide. And slide. 5, 6. Hand curl, hands here. Hands still not jumping. Warming up. Keep going. 4 more. 3 more. Last 2. Mambo, mambo, left leg. And back. And back. Pretty step. Kind of funky. Twist and back. Hands are going with it. Well done. 5. ट्विस्ट। शरीर को एक लय में आगे पीछे करना, या फिर यूं कहें कि थिरकना ही ट्विस्ट होता है। ध्यान रखिए, इसमें शरीर के सारे अंग सक्रिय रहें। 6, 1, 2, 3, forward and back now. 1 clap. Double. Double. And double. Last time forward back.
All right, heel tap, heel push, left and right. Well done. All right, changing the arms, arms. 4 more, 4, 3, and 2. Last one, you hold the right leg, press it down, down, and up, down, and up. Keep going, 4 more, 4, and 3. Last 2, last one. Hold it here. You see you're stretching your hamstring right here. Your knee is over your ankle, your weight is on your bent leg. Start pushing with the same leg. 5, 6, 7, go. Push. 5, 6. You hold the left leg here, press it down, down, and up. Well done, down, and up. So nice hamstring stretch. You've done it like a million times. And up, and up. 5, 6. All right, march your deep breath once more. And then, are we ready for our interesting combination? And down. और we start down. लेग प्रेशर। अपने पैरों को एड़ी के बल पर आगे पीछे लाएं, फिर अपनी थाइस पर दोनों हाथों से प्रेशर डालें। इस क्रिया को आप बार बार दोहरा सकते हैं। 3, 4, marching 4, right leg. Gallop 2, 3, 4, and march. Again, gallop. And march. Well done. Gallop 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gallop 2, 3, 4. Watch the change. 1, 2, tap, and tap, and tap. 1, 2, tap. So you're galloping for 2 counts. 1, 2, 3 taps. Interesting. Let's make it more interesting. Watch the change. 1, 2, knee up. And now. Again, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6. And gallop 2. All right, hold it. Diamond here. Right leg. And back. And back. Diamond. We're going to use this later. So diamond, let me show you a variation. Diamond forward, jump back. Forward, 2, 3, 4, and jump. Forward. And jump. All right, hold it. Mambo here, hold. Holding. All right, we're going to take a clock here, guys. Ready? 5, 6, and 5, 6, 5, clock, right leg. Hold the diamond now. Jump back. Again. And jump back. Last time. Holding step up, right leg. All right, are we there? Can we do it this side? So we go gallop, right leg, 3 knees, clock, left leg, diamond, jump back. This one, ready? 5, 6, gallop now. 1, 2, knee, clocking. Diamond, jump back. Hold it, step touch. Alright, Karishma, what can we put now? जंपिंग बैक। सावधान की मुद्रा से शुरुआत करें, उसके बाद हाथ हवा में लहराते हुए 2 या 3 कदम पीछे चलें और फिर 2 या 3 कदम ही आगे चलें। उसके बाद दोनों पैर जोड़कर पीछे की तरफ जंप करते जाएं। Okay, she said over the top. All right. So we take over the top is like a step, double step touch. What? Now with me. Left side. Left. And right. Left. And right. Again. And right. Actually, we're doing it like a grapevine. All right, hold it here. March it. Now something called an attitude. Attitude is like your own attitude. Okay? So we jump with it, squat with it. 5, 6, facing this side, attitude. And jump. Again. Jump. Push. Squatting. Squat. And squat. 5, 6. Alright, hold a step down left. Alright. Can we take it from the top? What are we doing? Starting with the gallop. Alright, keep lifting. 5, 6. So let's discuss when we do gallop 3 knees. Then you do clock. Then you do diamond jump back. Ready? 5, 6.
Gallop here. Jog it right leg. Diamond, what's coming up? Attitude. Now attitude. Hold it step. How was it? Pretty. Okay, doing your left side once more, then take it to the right side. Ready? Stay ready. 5, 6. Gallop now. Gallop 2, knee. Clock it. Diamond. Diamond, jump back. Over the top here. Attitude. Right leg, gallop. 3. Clock it. Diamond. Over. Attitude. Hold it step tight. Well done guys, that's good job. ओवर द टॉप। इस क्रिया को भी आप बड़े ही मजे से कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि अपने हाथ और पैरों को एक लयबद्ध तरीके से शरीर को लोच देते हुए दाएं बाएं 2-2 कदम आगे पीछे जाइए। इससे भी आपको स्फूर्ति मिलेगी। Now deep breath. Nothing better to relax than yoga. Please listen to the guidelines. Very important. Last time, deep breath. And down. Walking to the side of our mat. I should walk on top of it. डीप ब्रेथ। अपने पैर खोलें और हाथ क्रॉस बनाते हुए ऊपर ले जाएं। नीचे से हाथ ऊपर ले जाते समय सांस को लंबा खींचें और वापस आते आते सांस को छोड़ दें। If you do that before retiring to the bed, your legs feel fresh in the morning. Rested. So keep the guidelines in mind, try these things at home and increase your time limit as you get better. Until next time, bye-bye. तो देखा आपने, हमारे एरोबिक इंस्ट्रक्टर ने कितनी आसानी और बखूबी से आपको कमर का दर्द दूर करने के लिए एक्सरसाइजेस बताई। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी सावधानियों का ख्याल रखें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। अरे क्या हुआ, डॉक्टर का नाम सुनते ही आप उठने क्यों लगे? अरे भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर दर्द ज़्यादा बढ़ जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करना तो बहुत ज़रूरी होता है ना। अब वो क्या है कि आपका और हमारा रिश्ता इतना मजबूत और इतना दिलचस्प हो चुका है कि हम आपको गलत मशवरा तो दे ही नहीं सकते। इस तरह सही इलाज के लिए, सही फिटनेस के लिए सही और उपयुक्त मशवरा ही आप हमारे प्रोग्राम में पाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं। फिट फॉर लाइफ में अब बात करेंगे योगा के बारे में। कमर के दर्द का योगासन में क्या इलाज है, इसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से पता करेंगे। लेकिन आपको तो मालूम है, जब तक मैं आपको योग के बारे में खुद कुछ नहीं बता देती तब तक मुझे चैन कहाँ आता है। और मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग बड़े धैर्य के साथ मुझे सुनते हैं। वैसे धैर्य शब्द हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी आसन हमें धैर्य से करने होते हैं। जल्दबाजी करने से उल्टा नुकसान हो जाता है। और हाँ, आसन करते वक्त बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए। बीमारी की अवस्था में तो आसन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सैर करने के बाद आधा घंटा विश्राम करें, उसके बाद ही योगासन करने चाहिए। मुझे मालूम है कि अब आपके धैर्य का बांध तो बिल्कुल टूट चुका है। बस अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और आपको सीधा लेकर चलूंगी अपने योगा एक्सपर्ट के पास, जो हमें कुछ आसन बताने जा रहे हैं कमर के दर्द से छुटकारा पाने के लिए। तो आप तैयार हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज्वलंत समस्या लेकर, कमर का दर्द। आज हम जैसे साधारण व्यक्तियों में भी कमर के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा उपस्थित हो गई है। उसकी एक मुख्य वजह है आपके गलत तरह बैठने का तरीका। आप जब बैठते हैं तो आपकी कमर का जो नीचे का हिस्सा है उसको गोल कर लेते हैं, आलस्य में बैठते हैं। अब जब भी बैठें बिल्कुल सीधा बैठें। यदि आपकी लोअर बैक में पेन रहता है तो आप समझ लीजिए आप गलत बैठ रहे हैं। आप बैठने का तरीका सीधी कुर्सी पे, आप पुराने जमाने की कुर्सी देखेंगे तो वो कुर्सी होती है नीचे से तख्ता सीधा और आगे से इस प्रकार सीधा, पीछे से बिल्कुल सीधा। तो आप जब बैठे तो कमर को इस प्रकार टिका के बैठे पीछे की तरफ, तो बिल्कुल सीधी कमर रहेगी।
तो आपकी कमर में कभी दर्द नहीं होगा। यदि आप कमर को झुका के बैठेंगे तो आपकी लोअर बैक के जो लिगामेंट्स है वो वीक हो जाएंगे और बार बार ब्रेक कर जाएंगे और उनमें फिर दर्द रहना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी कमर में 3 प्रकार के दर्द होते हैं, एक तो लोअर बैक पेन, एक अपर बैक पेन और एक मिडिल बैक पेन। तो ये जो लोअर बैक और अपर बैक का पेन है वो योग के द्वारा बहुत जल्दी आसानी से ठीक किया जा सकता है। यदि बीच का है तो वो सर्वाइकल के में ठीक होगा। यदि कमर के आप आज हम जो लेंगे योगासनों का तरीका वो आपके ऊपर के कमर के दर्द और नीचे के कमर के दर्द को ठीक करने के कुछ योगासन करेंगे, जिनके द्वारा बहुत आसानी से नीचे का कमर का दर्द और ऊपर के कमर का दर्द ठीक किया जा सकता है। जो इन लोअर बैक को पेन को ठीक करने के लिए योग में एक बहुत अच्छा आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए आप साधारण स्थिति में खड़े हों, आधे फुट के करीब आपके पैर खुले हुए और उतने ही आपके हाथ खुले हुए। अब इनको स्विंग करना शुरू करेंगे, बिल्कुल इजी स्विंगिंग, बिल्कुल पीछे तक जाइए और फिर दूसरी तरफ। आपके पैर घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, इनको पीछे तक जाइए, जितना पीछे तक फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपके हाथ अपनी जगह स्थिर रहेंगे, इसके अंदर आप हाथ पीछे तक जाए, बिल्कुल पीछे तक धीरे धीरे जितने हाथ करें। तो आप कमर जो है इस प्रकार से आपकी ट्विस्ट करनी चाहिए। कपड़ा निचोड़ते हैं उस प्रकार से ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी घूमेगी उतने आप निरोगी। बिल्कुल पीछे तक जाइए और फिर दूसरी तरफ। आपके पैर घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, इनको पीछे तक जाइए, जितना पीछे तक फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपके हाथ अपनी जगह और पीछे तक घूमे, जितना आसानी से घूम सकते हैं, बिल्कुल आराम से घूमे। आपकी श्वास की स्थिति साधारण प्रसन्न मुद्रा में आसन करें, जितना आसानी से कर सकें, बिना जबरदस्ती के, बिना झटके से, आराम से धीरे धीरे स्विंग करें दोनों हाथों को, पहले आगे की तरफ और फिर दूसरी तरफ। इसका नाम है कटी चक्रासन। बिल्कुल धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। इस आसन में कोई खास सावधानी रखने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी तो इतनी रखेंगे कि इसको धीरे धीरे करें, झटके से ना करें और आराम से करें। इसमें कोई भी व्यक्ति, वृद्ध, अबाल, जो बच्चे, जवान, सभी कर सकते हैं। स्त्री पुरुष साधारण जिनकी कमर में दर्द हो, नहीं भी हो, तो इसको करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे, कमर के दर्द से दूर रहेंगे। इसके 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार तो मैंने आपको कराया, साधारण में पीछे रह जाइए इस प्रकार से, और इसका दूसरा प्रकार इस प्रकार है जो आपके हाथ जा रहे हैं, हाथ विपरीत दिशा में और गर्दन विपरीत दिशा में, यानी आपके हाथ पीछे गए और गर्दन ऑपोजिट दूसरी तरफ। दोनों का नाम कटी चक्रासन। बस 2 अलग अलग क्रियाएं करने के तरीके अलग अलग। एक में हाथ और गर्दन दोनों एक ही तरफ, दूसरे में गर्दन दूसरी तरफ और हाथ दूसरी तरफ। पूर्वार्ध रूप था इसका, पहला वाला जो रूप था उसके द्वारा आपकी लोअर बैक का पेन ठीक होगा, इसके द्वारा आपकी लोअर बैक और गर्दन के नीचे का दर्द वो भी ठीक होगा। करने का तरीका एक बार फिर समझ लें। दोनों हाथ सामने लाए, जितने हाथ खुले हैं उतने पैर खुले और दोनों हाथों को पीछे ले जाना आरंभ करें, गर्दन को उसी तरफ रखते हुए। आपके हाथ बिल्कुल आपके कंधों के बराबर रहने चाहिए। कईयों के व्यक्ति करते वक्त हाथ नीचे आ जाते हैं, इसको बिल्कुल दोनों हाथ सामने रखें, दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ फेस रखे हुए और घुमाएं, कंधों के बराबर रखते हुए। इस प्रकार से धीरे धीरे बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में इन योगाभ्यास करेंगे। योगाभ्यास करते वक्त एक बात अवश्य ध्यान रखें, खाना खाने से हमेशा पहले करें। यदि खाना खाने के बाद करना चाहते हैं तो 3 घंटे का अंतर अवश्य डालें खाना खाने में और योगासन करने में। यानी आपके हाथ पीछे गए और गर्दन ऑपोजिट दूसरी तरफ। दोनों का नाम कटी चक्रासन। बस 2 अलग अलग। अब हम कुछ और आसन करेंगे इस कमर दर्द को ठीक करने के। उसके लिए हमें लेटना पड़ेगा। अब हम योग का एक और महत्वपूर्ण आसन करेंगे कमर दर्द को दूर करने के लिए। इसका नाम है मरकट आसन।
कमरकटासन करने के लिए अपने हाथों को थोड़ा सा बाहर की तरफ खोल दें और अब विपरीत पैर से विपरीत हाथ को छुएंगे, यानी उल्टे हाथ से सीधे पैर को और सीधे हाथ से उल्टे पैर। साधारण सांस की स्थिति साधारण रहेगी इसके अंदर। एक पैर को उठाएं और दूसरे हाथ की हथेली को छुएं पैर के द्वारा। वापस आए साधारण स्थिति में और अब दूसरे पैर को साथ से छुएं, यानी आपकी लोअर बैक पेन को ठीक करने के लिए बहुत ही अद्भुत आसन है। आपके शरीर को बिल्कुल अकड़ाना है इसके अंदर। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे इस आसन को, वापस धीरे धीरे इस प्रकार छोड़ेंगे और फिर दूसरी तरफ मोड़िए और वापस धीरे धीरे इस दम के द्वारा धीरे धीरे करेंगे पोज को। इसके द्वारा लोअर बैक का पेन बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। आपको पोस्चर तो ठीक करना ही पड़ेगा। आपको जो बैठते जिस प्रकार है वो तो आपको ठीक करना परम आवश्यक है, परंतु साथ साथ जिनके अब बैक में दर्द हो गया तो सीधा बैठना तो आरंभ करें ही करें, साथ में ये योगासन भी करें तो बहुत जल्दी का आपका कमर के दर्द से आपको निजात मिल पाएगी। इस प्रकार से धीरे धीरे जो लोगों से नहीं हो पा रहा है वो इसको एक रूप से और कर सकते हैं। दोनों हाथों को पास कर लीजिए और फिर इस प्रकार से आराम से पैर को मोड़कर इस प्रकार भी धीरे धीरे कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप पहले स्थिति में पैर को सीधा ले जाकर यहाँ तक कर लें। शुरू में आप इसको आराम से यहाँ भी रख सकते हैं। पैर ये यहाँ आराम से रखा आपने और फिर वापस ले गए। इसका बेसिक रूप भी कर सकते हैं इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पे लाकर और फिर एक पैर को उठाएं और दूसरे हाथ की हथेली को छुएं पैर के द्वारा। वापस आए साधारण स्थिति में और अब दूसरे पैर इस प्रकार से छुएं। अब एक और आसन है जिसमें आपको उल्टा लेटना पड़ेगा, यानी पेट के बल। योग में एक और बहुत महत्वपूर्ण आसन है कमर दर्द को दूर करने के लिए, धनुरासन यानी बो पोज। इस प्रकार से दोनों पैरों को उठाना है आपको, नाभि के बल पे पूरा शरीर ऊपर आना चाहिए। खिंचा हुआ कमान के समान, धनुष के समान कमान, बिल्कुल खिंचा हुआ शरीर आपका, इसलिए इसका नाम धनुरासन रखा गया है। इसमें आपको पूरे पैर उठाने और खींचने दोनों एक साथ हैं। कई व्यक्ति खाली इस प्रकार कर लेते हैं, ये ऐसे। ये अर्ध धनुरासन हुआ। पूर्ण धनुरासन करने के लिए आपको पूरा शरीर उठाना और खींचना एक साथ है इस प्रकार। कुछ समय तक इस प्रकार इस धनुरासन का अभ्यास किया जाए कुछ दिन तक, तो आपके को कमर दर्द से निजात मिल सकती है बहुत आसानी से। तो दोबारा एक बार करके देखें। दोनों हाथों से अपने पैरों के टखनों को पकड़ें और उठाना शुरू करें। चेस्ट, साथ में पैर को घुटनों को उठाएंगे भी जंघा तक और खींचेंगे पूरे साथ। आप समझें, इसको उठाना और खींचना पैरों को एक साथ है। यदि आप खाली खींच लेंगे तो पैर ऐसे रह जाएंगे। उठाइए और खींचिए दोनों एक साथ इस प्रकार से। छोड़ दीजिए, यथाशक्ति करें और फिर छोड़ दें। धनुष के समान कमान, बिल्कुल खिंचा हुआ शरीर आपका, इसलिए इसका नाम धनुरासन रखा गया है इस पोज में। बिल्कुल इसमें आपको पूरे पैर उठाने और खींचने दोनों एक साथ हैं। आज जो हमने 3 योगासन किए कमर दर्द को दूर करने में, बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण आसन है ये कमर दर्द को दूर करने के लिए। आप इसको दिन में 2-3 बार इन आसनों को खाना खाने के बाद 3 घंटे बाद जब भी करें, योगासनों को खाना खाने के 3 घंटे बाद करें। खाना खाने से पूर्व तो करें आसनों को, सुबह दोपहर शाम। जब कमर का दर्द यदि आपके रह गया तो जीवन में आनंद खत्म हो जाता है। इसलिए कमर के दर्द को दूर भगाएं। कैसे भगाएं? ये योगासन करके। आप ना बैठने का जो पोस्चर है उसको खास तौर पर बदलें। बैठने का पोस्चर आप बिल्कुल सीधी रखें। आप साधारण स्थिति में देखेंगे तो जो पुराने जमाने में कुर्सियां हुआ करती थी वो इस प्रकार हुआ करती थी, बिल्कुल सीधी, नीचे से ऐसे आई और 90 डिग्री में इस प्रकार टर्न कर गई। आप आलस्य में ना आजकल जो बैठते हैं वो इस प्रकार ऐसे कमर टेढ़ी करके बैठ जाते हैं। जब कमर टेढ़ी करके बैठते हैं कुर्सी पे या कैसे भी, तो आपके जो यहाँ के लोअर बैक के लिगामेंट्स हैं वो वीक हो जाते हैं और कुछ दिन में वो ब्रेक होने लगते हैं। उसकी वजह से आपके लोअर बैक में दर्द रहना आरंभ हो जाता है। तो जब भी बैठने का प्रयास करें बिल्कुल सीधा,
इस प्रकार नहीं, कमर को लोअर बैक को बिल्कुल सीधा रखें इस प्रकार, तो आपके कमर में कभी दर्द होगा ही नहीं। यदि अब दर्द हो गया तो ये योगासन करें, और योगासन करते वक्त एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें, आगे झुकने वाले आसन बहुत कम करें। यदि करना भी पड़ता है कोई दैनिक कर्म में आपको काम इस प्रकार जिसमें बाल्टी उठाना कोई आसन, तो बहुत धीरे धीरे उठाएं। यदि आप आगे झुकने के आसन करेंगे या आगे झुकने वाले कार्य ज्यादा करेंगे तो आपका कमर का दर्द एकदम बढ़ जाएगा। आप ये योगासन करें और लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये आसन कमर का दर्द तो दूर करता ही है, साथ ही कमर को लचीला भी बनाता है। हर आसन बड़ी सावधानी से और मन लगाकर कीजिए। योगासन करते समय इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये वक्त खास अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए रखिए। ये आसन कमर का दर्द दूर करने के साथ साथ श्वास रोगों को भी दूर करता है। जैसा कि आज हम कमर के बारे में बात कर रहे थे, तो इसी संदर्भ में है हमारी आज की हेल्थ टिप्स। कमर को पतला करने के लिए लंबे समय तक नित्य पपीता खाना चाहिए। हल्दी और आंवले को पीसकर छाछ के साथ लेना चाहिए। कमर का दर्द दूर करने के लिए तारपीन के तेल की मालिश करें। 5-6 लहसुन की कलियों का रस मट्ठे के साथ लें। मेथी की सब्जी खानी चाहिए। अजवाइन को एक कपड़े की पोटली में बांधकर उसे तवे पर गर्म करें और उसका कमर पर सेक लें। हमारा बस एक ही मकसद है कि आप हमारे प्रोग्राम फिट फॉर लाइफ से पूरा फायदा उठाएं और अपनी जिंदगी को स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर एंड बी फिट।